خالد بن ولید اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل جنہوں نے اسلام کو عرب سے نکال کر رومن اور پرشین امپائر جیسی سپر پاورز کو ہرایا۔ اللہ اکبر! لیکن اس سب کے بعد بھی اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی پوزیشن مطلب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن کیوں؟ اتنے بڑے جنرل کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ خالد بن ولید اب تک دنیا کے سارے جنرلز وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ احد میں مسلمانوں کو ہرایا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ موتا جیسی خطرناک جنگ جیتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ انہیں سیف اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پوری فوج کا پہلا آرمی چیف بنا، جس کے بعد وہ مدینہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور بہت تیزی سے پورے عرب کو فتح کر لیا اور جنگ یمامہ میں بہت بڑی فتح حاصل کی۔ لیکن پورا عرب فتح کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس مدینہ آنے کے بجائے پرشین امپائر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ پرشین امپائر پہنچنے کے بعد خالد بن ولید نے اگین بہت ہی تیزی سے پرشین امپائر کی یہ سارے علاقے فتح کر لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری فوج رومن امپائر کی طرف بھی روانہ کی، لیکن یہ فوج بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اسی لیے رومن امپائر کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف آرڈرز بھیجے کہ وہ پرشین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف جائے۔ پھر جب خالد بن ولید رومن امپائر کی طرف گئے تو اگین وہاں ہر جنگ جیتنے لگے اور آخر رومن امپائر کی بہت ہی امپورٹنٹ سٹی ڈمیسکس کو فتح کر کے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ لیکن اب جب خالد بن ولید رومن امپائر کی طرف چلے گئے تھے تو پرشین امپائر میں مسلمان دوبارہ ہارنے لگے۔ تو جب پوری دنیا کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جہاں خالد بن ولید جاتے ہیں وہاں مسلمان جیتتے ہیں اور جہاں پر وہ نہیں ہوتے وہاں مسلمان ہار جاتے ہیں، جس کے بعد خالد بن ولید ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئے، اور صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ رومن اور پرشین امپائر میں بھی خالد بن ولید کے فتوحات کی کہانیاں پھیلنے لگی۔ یہاں تک کہ ایک دشمن جنرل نے خالد بن ولید کے پاس آ کر یہ تک کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دن آسمان سے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تلوار نازل ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد یہ باتیں نئے مسلمانوں کی گیدرنگز میں عام ہو چکی تھی کہ صرف خالد ہی جنگ جیت سکتے ہیں اور ان کے علاوہ چاہے جو بھی ہو مسلمان جنگ نہیں جیت سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کا خالد بن ولید کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر لیٹس سے خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو پھر مسلمانوں کی فوج کا سارا مورال ٹوٹ جاتا۔ تو آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ بٹ ویٹ، حضرت عمر نے صرف خالد بن ولید کو ہی نہیں ہٹایا بلکہ مسلمانوں کی اسٹیٹ کو ہر اینگل سے بدلنا شروع کیا اور مدینہ میں بیٹھ کر ہر علاقے کی طرف آرڈرز بھیجے۔ سب سے پہلے انہوں نے فتح کیے گئے علاقوں میں نئے گورنرز لگائے اور ان کو یہ آرڈرز دے دیے کہ ہر فیصلے سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے، اور یہ عرب کے لیے بہت ہی نئی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ہر قبیلہ اپنے فیصلے خود ہی کیا کرتا تھا، لیکن حضرت عمر قبائلی سسٹم کے خلاف تھے اور ایک سینٹرلائزڈ مدینہ کی طاقت چاہتے تھے۔ صوبوں میں گورنرز لگانے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے انہیں بتائے بغیر کچھ جاسوس بھی بٹھائے جو ان گورنرز کی اچھی یا بری ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے ہر صوبے میں جسٹس انصاف کا سسٹم بنایا جس میں ہر صوبے میں اسلامک قانون کے مطابق عدالتیں کورٹس بنائے گئے، اور ان ساری عدالتوں کا ہیڈ کوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنائے گئے جس میں بہت سارے صحابہ ججز لگائے گئے، اور ان سارے ججز میں ایک سب سے ریسپیکٹڈ اور بڑے جج تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سٹی میں پہلی بار ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا، اور ان سٹیز کے بازاروں میں پرائسز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اور اسپیشلی مدینہ کے بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس کا لیڈر بنایا۔ یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب بات تھی کہ حضرت عمر نے اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پر ایک عورت کو کیسے بٹھایا، لیکن حضرت عمر صرف میرٹ کو دیکھ کر ہی فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ سب تو وہ کام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سول ایڈمنسٹریشن میں کیے تھے، لیکن اس سب کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی آرمی کو بھی چینج کرنا شروع کیا۔ مطلب اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آرمی اور جنرلز سارے فیصلے خود ہی کیا کرتی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کرنے کی انہیں اجازت بھی دی تھی کیونکہ اس زمانے میں نہ فونز تھے اور نہ انٹرنیٹ، تو اگر ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ سے پوچھا جاتا تو اس سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی،
लेकिन हजरत उमर को मुसलमानों की फौज की स्पीड से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों की इस एम्पायर से भी बहुत बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने बनाई थी, लेकिन वो एम्पायर सिर्फ 100 सालों में बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि इस्लाम इस एम्पायर के बाद भी आने वाले हजारों साल तक दुनिया में कायम रहे। तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा और उन्हें इस एम्पायर के नए रूल समझाए कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। इसके अलावा हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज के अंदर कुछ स्पाइज जासूस भी बिठाए जो इन जनरल्स को बगैर बताए उनकी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। खालिद बिन वलीद ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लेटर पढ़ा कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दी। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती, और स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ना खालिद बिन वलीद का स्टाइल नहीं था। हजरत उमर ने दोबारा खालिद बिन वलीद की तरफ एक दूसरा लेटर भेजा कि तुम सिर्फ इसी शर्त पर मुसलमानों के आर्मी चीफ रहोगे अगर इन ऑर्डर्स को मान लो। लेकिन अगेन खालिद बिन वलीद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब पहले खलीफा अबू बकर मुझसे नहीं पूछते थे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। नाउ इब्ने हाजर अल अस्कलानी की किताब और कुछ बाकी किताबों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है कि एक दिन खालिद बिन वलीद एक महफिल में बैठे हुए थे जहां एक शायर ने कुछ बहुत ही जबरदस्त अशार पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उसे उस जमाने की करेंसी के मुताबिक 10,000 कॉइन्स दिए। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया उसी वक्त वहां पे वो स्पाई भी बैठा हुआ था, और ये खालिद बिन वलीद ने छुप के नहीं किया था बल्कि सबके सामने किया था। इसीलिए वहां पर बैठे हजरत उमर के स्पाई ने ये सब देख लिया और सीधा इस सब की रिपोर्टिंग हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को की। खालिद बिन वलीद की इस हरकत पर हजरत उमर बहुत ही नाराज हुए और सीधा एक लेटर मुसलमानों के दूसरे जनरल अबू उबैदा इब्ने जर्राह की तरफ भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर खालिद बिन वलीद ने ये पैसे उस शायर को अपनी जेब से दिए तो ये उसने फजूल खर्ची की है, और अगर ये पैसे उसने मुसलमानों के बैतुल माल से दिए तो ये उसने खयानत की है। इन एनी केस खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना जायज है। और आगे लिखा कि आज से तुम अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ हो गए। लेकिन हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से हटाया नहीं बल्कि एक रैंक नीचे कर दिया, और इसके बाद भी वो फौज के बहुत बड़े जनरल थे, मतलब फौज के सेकंड इन कमांड थे। जब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ये लेटर दिखाया तो चाहिए तो ये था कि खालिद बिन वलीद को बहुत ही सख्त गुस्सा आता कि उनकी सारी मेहनत, मतलब पहले अरब फतह करना, उसके बाद पर्शियन एम्पायर फतह करना और फिर रोमन एम्पायर फतह करने के बाद उनको ये सिला दिया जा रहा है। लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा से कहा, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। और बगैर किसी गुस्से या नाराजगी दिखाने के उन्होंने अबू उबैदा से कहा कि आज से मैं आपका यानी आर्मी चीफ अबू उबैदा इब्ने जर्राह का राइट हैंड बनकर रहूंगा। इसे आज हम बहुत ही एक नॉर्मल बात समझते हैं क्योंकि वो सहाबी थे, ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा ही करना था। लेकिन अगर हम दुनिया के सारे बड़े जनरल्स की हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हिस्ट्री में जब भी किसी लीडर ने अपने इतने ताकतवर जनरल को हटाने की कोशिश की है तो उस जनरल ने हमेशा बगावत की है या बगावत करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब अपने जनरल को हटाया तो रुस्तम ने उसी के खिलाफ ही बगावत कर दी, और रोमन एम्पायर के जनरल पोम्पी ने भी बगावत की। और इवन आज मॉडर्न दौर में भी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने पावरफुल आर्मी चीफ मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की तो मुशर्रफ ने उल्टा उसे ही हटाकर पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। इन सारे जनरल्स की खालिद बिन वलीद के सामने कोई औकात नहीं थी, क्योंकि खालिद बिन वलीद को आज तक दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब हजरत उमर ने उन्हें अपनी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया तो उन्होंने बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद कुछ नहीं किया और अपने लीडर खलीफा के ऑर्डर्स मान लिए। इस वक्त मुसलमान बहुत ही सख्त सिचुएशन में थे, एक तरफ रोमन्स और दूसरी तरफ पर्शियंस, और अगर खालिद बिन वलीद भी बगावत कर देते तो मुसलमानों की एम्पायर हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा था। नाउ इस मसले पर जितनी मैंने रिसर्च की है उसमें मैंने देखा कि इस वाकये में हजरत उमर और खालिद के अलावा एक थर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। मतलब एक तो हजरत उमर थे जिन्होंने बगैर किसी की परवाह किए मदीना की रियासत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। दूसरा खालिद बिन वलीद जिन्होंने इतना पावरफुल जनरल होने के बावजूद कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे मुसलमानों की एम्पायर को नुकसान पहुंचे। और तीसरा, इस एम्पायर की अवाम, पब्लिक। आर्मी चीफ के ओहदे से हटाए जाने के बाद एक दिन खालिद बिन वलीद मुसलमानों के एक ग्रुप से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सामने खड़े होकर फरमाया कि मुझे शाम सीरिया फतह करने के लिए भेजा गया, और जब मैंने पूरा शाम फतह कर लिया
तो उमर ने मुझे अपनी पोजीशन से हटा दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मुसलमानों के क्राउड से एक आम सा सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए हमारे सरदार, ऐसी बातें मत करो क्योंकि इन बातों से फितना पैदा हो सकता है। मतलब उस जमाने में मुसलमानों की इस एम्पायर की आम पब्लिक में भी इतना शऊर था कि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए, लीडर लीडर होता है और जनरल सिर्फ एक जनरल। खालिद बिन वलीद को हटाने से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक एम्पायर में एक कंफ्यूजन फैल गई कि आखिर क्यों हजरत उमर ने इतने सख्त टाइम पर खालिद बिन वलीद को हटा दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां फैलने लगी और लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद और हजरत उमर के दरमियान पुरानी कोई पर्सनल लड़ाई हो, इसीलिए हजरत उमर ने उसे हटा दिया। और कुछ और लोगों ने यह तक कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद ने कोई करप्शन की हो। लेकिन अगेन, हजरत उमर का जासूसों का नेटवर्क, स्पाइज का नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उन्हें अवाम की इस कंफ्यूजन का पहले ही पता चल गया। तो हजरत उमर ने मुसलमानों को मदीना के मस्जिद नबी में जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने खड़े होकर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मैंने, उमर बिन खत्ताब ने, अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद को किसी पर्सनल दुश्मनी या करप्शन की वजह से नहीं हटाया, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि खालिद बिन वलीद की जबरदस्त फतूहात की वजह से लोग अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद पर ट्रस्ट करने लगे थे। और मैं सारे मुसलमानों को यह दिखाना चाहता हूं कि किसी भी जंग में जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। और फिर यही सारी बातें उन्होंने लेटर्स में भी लिखी और फिर इन लेटर्स को हर सूबे के गवर्नर्स तक पहुंचा दिया ताकि खालिद बिन वलीद के कैरेक्टर पर कोई मुसलमान भी उंगली ना उठा सके। और इस वाक़े के बाद उन्होंने खालिद बिन वलीद की बेवा बहन के साथ शादी भी की, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि हजरत उमर और खालिद बिन वलीद के दरमियान इस वाक़े के बाद कोई इश्यूज नहीं थे। लोगों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर मान तो ली, लेकिन अब हजरत उमर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब उन्हें नेक्स्ट हर जंग जीतना लाजमी था, क्योंकि अगर मुसलमान खालिद बिन वलीद के जाने के बाद जंगे हारने लगे तो लोग हमेशा के लिए हजरत उमर के इस डिसीजन को गलत समझते। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में अरब के बहुत सारे कबीलों ने मदीना की रियासत से बगावत की थी, जिन्हें फिर खत्म तो कर दिया गया था, बट इन जंगों में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके कैदी बनाया गया था। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इन सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया और सबके लिए एक आम माफी का ऐलान कर दी, जिससे पूरे अरब में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और लोग हजरत उमर की इस रहमदिली से इतना खुश हुए कि उन्होंने आकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपनी मर्जी से मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। इन लोगों में एक शख्स तुलैहा भी था और ये वो शख्स था जिसने इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पैगंबर होने का झूठा दावा भी किया था। लेकिन जब वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो हजरत उमर ने उन्हें भी माफ कर दिया और वो भी मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। हजरत उमर के इन सख्त और जबरदस्त डिसीजंस के बाद अरब के लोग उनसे इतना खुश थे कि वो पुरानी सारी दुश्मनियां छोड़कर मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। और पहली बार ऐसा भी हुआ कि क्रिश्चियंस ने भी आकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों का साथ देने की कसम खाई। तो अब हजरत उमर ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस को मिलाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक नई आर्मी बनाई। इस फौज ने मुसन्ना की लीडरशिप में पर्शियन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज को हरा दिया और एट द सेम टाइम अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में भी मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की एक फौज को हराकर बहुत बड़ी फतह हासिल की। और इस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि मदीना की रियासत मुसलमान खालिद बिन वलीद के बगैर भी जंगे जीत सकते और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन अब मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जंगे यरमूक और जंगे कादसिया बहुत ही करीब आ चुकी।